Hello, friends, and welcome back to our channel Suraj EVSC. In the channel, which we discuss regarding electric vehicles, electric vehicle charging stations, and other interesting things. So, friends, let's drive electric. So, in today's channel, we are discussing about the common misunderstandings regarding the EVs in housing societies. Friends, as you know that electric vehicles are becoming more and more popular in India, and more people are adopting the electric vehicles for their daily commute and for long distance driving. So these vehicles need to be charged regularly, say maybe daily or once in 2 days, 3 days. So these cars need charging facilities. Oh yes, the car is provided with a charger, but where do you charge? At home. So it's not necessary for the car owner to go every day to a charging station and charge their cars at market rate, because the rate of electricity you get at your home is much lesser than the rate you are charged at a charging station. So it is always convenient for a EV owner to charge their cars at home. So in cities, many people reside in apartments and housing societies, and nowadays it has become what you say. Uh, uh, Many societies are the members of the societies are taking objections for having a electric vehicle in their parking lot, and the members are opposing to install the charging facilities in the parking area. So there are few questions which bother the other members who don't own an electric vehicle. So let me just go through the questions at first, and then we will discuss it in details. So the common questions asked are the EVs safe to park? How can you charge your electric vehicle if the flat owner stays on upper floors? How safe is it to install a charger in a parking lot? Will it burden the electrical system of the society? How much is the total load of a EV? Do you require any permissions to install a charging facility? And what will happen if more and more number of electric vehicles comes into the society? So is there any solution apart from the charger which is supplied by the vehicle manufacturer? And I'll tell you regarding the solution and how to plan the charging facility in even in upcoming buildings. So any architects or building construction companies who are watching this video can get in touch with me, and I can give you a very good solution regarding a charging facility in an housing society or a mall or any public building. So let's begin one by one. So आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये सब कैसे आता है. Friends, as I told you, we are the distributors for EO Charging, the British brand which is being launched in India, and they manufacture chargers, charging stations, and other accessories which you need for electrical vehicle charging. तो हमारे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, यानी जैसे कि कोई हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन है या फिर उनकी मीटिंग्स होती रहती है, तो मीटिंग्स में से वो लोग हमको कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे ईवी हमारे सोसाइटी में आ रही है एंड इट विल नीड अ चार्जिंग फैसिलिटी, सो व्हाट कैन वी डू, और कैसे वो चार्ज करे, क्या वो सेफ है. जैसे मैंने जो भी अभी तक सवाल मैंने रीड किए है. So these are the common questions which people ask. So let's take these questions one by one. So are the EVs safe? क्यों नहीं? आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल उतनी सेफ है जितनी कि आपकी रेगुलर पेट्रोल और डीजल कार सेफ है. ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम है उसमें, तो फिर कोई उसका खतरा है. यस,
जो भी रिस्क आपकी रेगुलर पेट्रोल डीजल कार की है, उतनी ही रिस्क आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है। पेट्रोल कार और डीजल कार की भी रिस्क होती है, ऐसा नहीं है कि वो 100% सेफ है। आपने कई बार सुना होगा गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होके आग लगती है, एंड दिस थिंग्स हैपन। ये तो एक्सीडेंट है, नोबडी डज इट ऑन पर्पस, नॉट द मैन्युफैक्चरर्स नॉर द ओनर ऑफ दिस कार। सो ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ईवीज और आपकी रेगुलर आईसी व्हीकल दोनों both has same amount of risk involved. How can you charge your electric vehicle if the flat owner stays on upper floors? अभी ऐसा तो संभव नहीं है कि आप एक 5वें या 6ठे फ्लोर पर रह रहे हैं और वहां से आप एक्सटेंशन केबल नीचे तक डाल दो और आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो जाए उसमें। That is not possible, that is risky, and I don't recommend doing that. So what you do, you have a extension cable from your individual meter which is installed in the meter box of all the building, और वहां से एक आप 4 या 6 स्क्वायर mm का आर्मर्ड केबल आप दीवार से राउट करके आपके जो डेडिकेटेड आपका पार्किंग लॉट है वहां तक ले आओ, और आपका जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो चार्जिंग इक्विपमेंट आया है आप उसको कनेक्ट कर दो। दैट इज वेरी सेफ, आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ सेफ इज इट टू इंस्टॉल ए चार्जर इन ए पार्किंग लॉट? इट इज वेरी सेफ। जो भी चार्जिंग इक्विपमेंट आएगा दैट इज वाटर प्रूफ, दैट इज IP67 का उसको वाटर इनग्रेस या डर्ट इनग्रेस का रेटिंग रहता है। तो इवन इफ बाय चांस वाटर गेट्स इनटू इट और समथिंग हैपन्स, उसको कुछ डैमेज या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रिकल एंगल, इफ यू लुक इट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एंगल, इट इज ऑल्सो सेफ। अभी लास्ट एक वीडियो में मैंने जो आपको चार्जिंग का ये केबल दिखाया था, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट गेट माय चार्जर एंड गेट बैक टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। सो this is the level 1 type of charging equipment which every car manufacturer gives you along with your car. So this you have to connect it to what you say, a charging box which is also provided, which contains RCBO and other electrical safety equipment, so as to prevent shocks and other leakages of current, etc. It is also IP67 water and dirt ingress protection is there. So as we were discussing in the other video regarding the cable, so this is the cable of Tata Nexon, and you can see these upper two small pins which are there. So these small pins are called PP, that is proximity sensor, and CP, that is the charge sensor, charge signal sensor. So what happens is, whenever you connect your cable to the car and switch on the charger, first the proximity sensor senses that the car has been connected to your charger, and then the CP sends out a small charge pilot signal to the BMS of the car. The car recognizes that a charging signal has been sent from the charger, and it replies back to the charger that yes, everything is okay, and the car SOC, that is state of charge, is so and so %, and then let us begin charging the car. So unless and until this process happens, your charging, the current through this cable will not pass. So it is very safe. Unless and until the car is connected to the charger, no current flows through this wire. So even if tomorrow this cable lies on the floor
एंड पीपल आर मोस्टली वरीड कि क्या होता है अगर बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं पार्किंग लॉट में, बाय चांस किसी ने इसमें कुछ पिन डाला या फिर इसमें हाथ डालने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा जब तक ये दोनों छोटे पिन कनेक्ट नहीं होते गाड़ी से और उसमें से उनका इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन गाड़ी के साथ नहीं होता है, तब तक चार्जिंग होता ही नहीं है, यानी इसमें से करंट पास नहीं होएगा. सो दैट वे इट इज वेरी सेफ. तो व्हाट इज द टोटल लोड ऑफ एन ईवी? तो ये डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, जो ऑनबोर्ड चार्जर रहता है उसके ऊपर ये सब डिपेंड रहता है. फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन हैज ए 3.2 किलोवाट चार्जर. Hyundai Kona and MG ZS has 7.5 kilowatt charger. Mercedes EQC and which is the other one? Luxury Jaguar I-Pace. That has 11 kilowatt 3-phase charger. Tata, MG and Kona are single-phase chargers. So the charger provided with the car or level 1 charger will be same 16 ampere charger on all these vehicles, but these bigger vehicles starting from 7.5 kilowatt of charger will give you another wall box, so that is a level 2 type of charger. So इस तरह से वो आएगा. ये अपने ईओ कंपनी का चार्जर है, पर अपने अपने मैन्युफैक्चरर के हिसाब से वो चार्जर देता है. ये भी कंपेटेबल है. This charger is compatible right from Mahindra E2 up to Tesla. कोई भी गाड़ी आप इस पे चार्ज कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के साथ आया हुआ ही चार्जर आपको इस्तेमाल करना चाहिए. If you charge your bigger vehicles with this level 1 charger, it will take 18 to 20 hours to charge your EV on the level 1 charger. That's why you need a level 2 type of charger. तो जैसे हम लोग कैपेसिटी की बात कर रहे थे, अभी समझो टाटा नेक्सॉन 3 किलोवाट का चार्जर है, तो 3 किलोवाट इज वेरी स्मॉल अमाउंट. अभी आप कोई भी बिल्डिंग है, नाउ दिस वीडियो आई एम मेकिंग इट टेकिंग इन माइंड a housing society or a apartment consisting of 15, 20, 25 dwellings over there. तो वहाँ पे ये ज़्यादातर परेशानी होती है. बंगलोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो सब अपना होता है. वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन इंस्टॉल एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर इट. पर जो भी पब्लिक बिल्डिंग होता है, सो पीपल हैव कंसर्न कि एकदम से लोड बढ़ जाएगा अपने, यानी बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर लोड आ जाएगा. तो जस्ट लेट मी शो यू व्हाट इज 3 किलोवाट इक्विवेलेंट ऑफ. 1 सेकेंड. Okay, now I have just opened a conversion table on my PC of kilowatt to a AC टन कैलकुलेटर. अब AC हम लोग जो लगाते हैं उसकी रेटिंग हम लोग टन में मेजर करते हैं. 1.5 टन का, 2 टन का, 3 टन का या 5 टन का, ऐसे टन में हम लोग उसको मेजर करते हैं. So for better understanding, I have opened a conversion table of kilowatt to ton, AC टन. तो अभी 1 किलोवाट का जो AC के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 0.28 का AC का लोड है वो. सो इट इज नॉट इवन 1 टन AC. तो जैसे अभी टाटा नेक्सॉन की बात कर रहे थे हम लोग, तो 1 सेकेंड. ओके, टाटा किलोवाट हैज 3 किलोवाट ऑफ 3.2 किलोवाट चार्जर. तो इसको अगर हम लोग 3.2 किलोवाट करते हैं तो वो 1 टन का AC के हिसाब से ये आता है. सो द टाटा नेक्सॉन चार्जर ऑफ 3.2 किलोवाट इज इक्विवेलेंट टू 0.90 ton of an AC if installed in your home. So it's not a big load. आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर कोई उसका फर्क नहीं आने वाला है. तो now let us see what happens to a Hyundai or a MG.
MG हैज 7.5 किलोवाट चार्जर, तो उसका AC का कन्वर्शन आप पे करेंगे, सो इट इज 2.13 टन ऑफ एन AC। तो 7.5 किलोवाट का चार्जर भी आप लोग लगाएंगे तो एक 2 टन का AC लगाने के बराबर है वो। तो इतना लोड तो आपकी सिस्टम पे नहीं आने वाला है एज ऑफ नाउ। अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा व्हेन मोर एंड मोर कार्स स्टार्ट, मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स start coming into your society and they start charging their vehicles in the night at the same time। अभी समझो 7.5 किलोवाट की 20 गाड़ी एकदम ये हो जाती है, सो उस एट दैट टाइम उसमें बहुत फर्क आने वाला है, उसमें बहुत फर्क आने वाला है। 1 सेकेंड, आई जस्ट उसका भी मैं आपको ये दे देता हूँ। सो 20 इंटू 7.5 वो टोटल लोड हो जाता है 150 किलोवाट का। एंड इफ यू कन्वर्ट 150 किलोवाट इंटू AC टन तो वो 42 टन का वो AC हो जाएगा। सो दैट विल पुट ए व्हाट यू से लोड ऑन योर सिस्टम, क्योंकि एक साथ इतनी गाड़ी चार्ज हो रही है, इतनी गाड़ी एक साथ चार्ज हो रही है, तो दैट विल क्रिएट सम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। एक 2 गाड़ी आती है, 3 गाड़ी आती है, 5 गाड़ी आती है, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एज आई टोल्ड यू, मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग ऑन रोड एंड यू विल हैव टू बी फ्यूचर रेडी फॉर दिस इन्वेजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो we'll discuss about it in later half of my video. So, do you require any permissions to install a charging facility? No permissions are required from a municipal corporation or your local discom. Nothing is required because it is considered as a domestic product and you can charge your vehicle at your place. Only thing is some discoms give you a special category electrical connection under the category of electric vehicles or electric vehicle charging stations that has some differential rate from the regular domestic or commercial rate. We'll come to that in the later part of it. So you can take that facility also. What will happen if more number of EVs come into the society? As I told you, if more number of EVs come, yes, it is bound to burden your existing system. If it is not made to that, it is not adaptable to that excess load. Is there any solution? Yes, we do have a solution. Now, we at EO Charging have two types of chargers. So this is the personal charger. It is 7.5 kilowatt capacity, and the other thing I showed you is the 22 kilowatt capacity. This is the EO Genius. Now, what we suggest is आपकी जो सोसाइटी है, that society should take this new electric connection under electric vehicle charging category. जैसे मैंने बोला, कई डिस्कॉम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग कैटेगरी में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट। ठीक है, अभी आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो इन महाराष्ट्र they are providing this connection at 6 rupees per unit flat rate. उसमें कोई स्लैब्स नहीं है, 0 to अनलिमिटेड कोई भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स ये इस्तेमाल करो, इट विल बी चार्ज एट 6 रुपीज पर यूनिट। तो अभी आपकी जो सोसाइटी है, द सोसाइटी शुड टेक अ न्यू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अंडर द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी कैटेगरी एंड it should install these charging systems at the individual parking lots. Okay, you can ask the owner to purchase a charger at subsidized rate or MRP, whatever. You can get in touch with me for the pricing and other details. तो ये कैसे हो जाएगा कि सोसाइटी अपने नाम से नया इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेगी, दैट कनेक्शन विल बी अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जो आपका बिल्डिंग का कनेक्शन है, उससे अलग हो जाएगा, उसका सर्किट अलग हो जाएगा। तो
इस पे आप जो भी आपका इलेक्ट्रिकल लोड है उसके हिसाब से आप ये कनेक्शन ले सकते हो। आपका जो ट्रांसफार्मर रहता है बिल्डिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव ए सेपरेट ट्रांसफार्मर। अभी समझो आपका 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और योर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो भी आपका ये है दैट इज कमिंग टू अराउंड 60 केवीए और आपका 40 केवीए का बचा हुआ है। सो यू कैन टेक दिस 40 केवीए इनटू कंसिडरेशन और उसके हिसाब से आप ये उसका नया जो भी आपका कैपेसिटी है, 5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है और फ्यूचर का हिसाब में लेके एक 20-30 जो भी आपका 40 केवीए में से आप ये आप नया कनेक्शन लगवा लो। समझो एक 5 गाड़ी के लिए आप ले लेते हो, कंसिडरिंग 7.5 अभी इंडिया में जो भी गाड़ी है ज़्यादातर के 7.5 किलोवाट की आ रही है, तो 7.5 इंटू 5 यू कैन से एक 30-35 केवीए का आपने कनेक्शन ले लो जो भी आपका लोकल डिस्कॉम है वहाँ से। तो you will have to install one more accessory. I'll just show you. So this is the EO hub. Now what this hub will do, this hub will monitor all the charges you have connected to this hub. So this hub can monitor up to 32 charges at a time. तो एक हब से आप 32 चार्जर एक साथ मॉनिटर कर सकते हो कि किसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, कितने बजे किया है, एंड ऑल दिस डिटेल्स आर अवेलेबल विथ यू और द जो भी आपके सोसाइटी के ऑफिस में आप ये हब इंस्टॉल करके आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द चार्जिंग सिस्टम्स ऑन योर पीसी। तो ये हब आप आपके ऑफिस में लगवा लो और उसके बाद में जितनी भी गाड़ियां हैं, समझो नाउ वी आर कंसिडरिंग एज 4 to 5 व्हीकल्स, तो एक समझो 3 गाड़ी आपके सोसाइटी में आ गई है और आपने 5 की सिस्टम लगवा लिया है हमसे, तो यू कैन इंस्टॉल हब। उसके बाद में आप जो भी आपके व्हीकल ओनर्स है उनके अपने चार्जिंग अपने पार्किंग स्लॉट में आप ये चार्जर इंस्टॉल कर दो। बस इतना ही ये चार्जर है। दिस इज वॉल माउंटिंग चार्जर, यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट ऑन द वॉल डायरेक्टली, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। द साइज ऑफ द चार्जर इज वेरी स्मॉल, कोई भी इसको यानी आपके रेगुलर एरिया में ये रोड़ा नहीं डालने वाला है। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ फ्यूचर प्रूफ। आगे जाके जो भी 22 किलोवाट की भी जो गाड़ी अगर आ जाती है तो दिस इज कॉम्पेटेबल विथ दैट व्हीकल ऑल्सो। समझो आपकी सोसाइटी में कल टेस्ला आ जाती है, सो टेस्ला भी इस पे चार्ज हो सकती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस ऑन द कार, ऑल्सो ऑन योर चार्जिंग सिस्टम। तो ये चार्जर आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे उसका केबल आता है, या यू कनेक्ट द केबल ओवर हियर और उसका अदर एंड यू हैव टू कनेक्ट इट टू योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ऐसे आप इसके यानी व्हीकल ओनर के पार्किंग एरिया में ये चार्जर इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु विल मॉनिटर दिस चार्जर्स? यस, द हब विल मॉनिटर इट। और बिलिंग का कैसे रहेगा? बिलिंग जो भी डिस्कॉम है, जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, दैट विल बिल योर सोसाइटी एंड द सोसाइटी विल बिल द इंडिविजुअल ओनर्स। अभी आप कहोगे कि तो सोसाइटी का जो चेयरमैन होता है तो उसका एक और जिम्मेदारी बढ़ गया कि गो एंड कलेक्ट द बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फ्रॉम एवरी ईवी ओनर। ऐसा नहीं है, दिस विल बी ए ऑटोमेटेड सिस्टम। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो
तो यहाँ पे एक QR कोड है। ओके, तो ये QR कोड इंडिविजुअल चार्जर के लिए आप ये कर सकते हो, दैट इज लॉक टू दिस इंडिविजुअल चार्जर। अभी आई एज ए समझो मेरा गाड़ी है और आपकी सोसाइटी में आप मेरा गाड़ी चार्ज करना है, सो आई विल हैव ए ऐप ऑन माय मोबाइल। तो जैसे ही मैंने इस गाड़ी को चार्ज करना है तो आई विल स्कैन दैट QR कोड। दैट QR कोड उसका जो भी मेरा KYC है, जो ईओ चार्जिंग का ऐप है उसमें मैंने KYC कर रखा है, उसमें मेरा डिटेल्स, मेरे गाड़ी का डिटेल्स, माय पेमेंट डिटेल्स ऑल आर रिकॉर्डेड इन दैट ऐप विद द KYC। तो जैसे आप आके ये स्कैन करोगे, वो आप जो नेक्स्ट पेज है उस पर चला जाएगा, वहाँ पे आपका जो चार्जिंग का रेट है वो दिखाएगा। एंड उसके बाद में जैसे ही आप स्टार्ट चार्जिंग का कमांड दोगे, सो इट विल स्टार्ट चार्जिंग योर EV। नाउ समझो ये चार्जिंग सेशन खत्म हो गया, द बैटरी इज फुल्ली चार्ज, द charger will stop charging the car. It will calculate how much number of units you have consumed, और जो भी आपका रेट आपका सोसाइटी के साथ तय हुआ है, you will be billed accordingly automatically। इसमें आपको ₹1 सोसाइटी को देने की जरूरत नहीं है फिजिकली, वो आपका बिल ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि दिस सिस्टम इज ऑटोमेटेड, आपको उसके लिए कोई आदमी भी मैन पावर रखने की भी जरूरत नहीं है, नॉर यू हैव टू गो ऑन आस्किंग जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है मंथली, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सोसाइटी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो रेगुलर इलेक्ट्रिकल लोड है वो सेग्रीगेट हो गया, तो वॉट एवर लोड आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर बचा है, यू कैन हैव द इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन ऑन दैट थिंग। समझो सारी गाड़ियां एक साथ चार्ज होने लगती है, तभी भी आपके बिल्डिंग के ऊपर इसका लोड नहीं आएगा। समझो यू हैव ए DG सेट इंस्टॉल्ड इन योर बिल्डिंग, तो वो भी लाइन सेपरेट ही हो जाएगा। समझो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड द DG स्टार्ट्स, इट विल नॉट चार्ज योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि वो अलग ही लाइन है, उसका बिलिंग अलग है, सब सर्किट ही अलग है। सो वो भी आपका हेडेक खत्म हो गया कि इवन दिस वाज ए क्वेश्चन व्हेन वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आस्क्ड कि समझो हमारे पास DG है और DG अगर जनरेटर चालू हो जाता है, सो इट विल कंज्यूम दैट इलेक्ट्रिसिटी इन योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स ए टोटली सेपरेट सर्किट। नाउ कमिंग टू द बिलिंग। अभी समझो even if you the vehicle owner doesn't or the society is not installing this system, और individual owner आप क्या सोसाइटी पे ही उन्होंने ये कर दिया है, अलाउ कर दिया है, समझो टेक एन एग्जांपल। तो इंडिविजुअल जो भी मैं एज ए ओनर आई एम चार्जिंग माय व्हीकल ऑन माय डोमेस्टिक कनेक्शन। अभी बहुत सारी स्टेट्स में है ना, आपके जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके ऊपर स्लैब्स रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल 0 to 100%, 100 to 300 यूनिट्स, 300 से 500, 500 के ऊपर ऐसे स्लैब्स रहते हैं। इन महाराष्ट्र वी हैव दैट सिस्टम, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो आई थिंक इट फ्रॉम 0 to 100% इट इज ₹3 पर यूनिट। अगर 100 के ऊपर चला गया तो इट इज कैलकुलेटेड एट ₹6 or ₹7, और 500 के ऊपर अगर वो जाता है सडनली इट गोज अप टू 10 or 11 rupees। आई विल जस्ट कंफर्म इट एंड आई विल लेट यू नो। तो समझो आपका रेगुलर बिलिंग जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इट इज अराउंड से 300 to 400। सो फर्स्ट 300 यूनिट्स यू आर चार्ज एट ₹3 per unit, and the rest of the 100 units you are charged at ₹5 or ₹7, whatever the slab is. I will just put up that photo on the screen and then I will let you know. तो समझो I bring in my electric vehicle and start charging it on my domestic connection.
सो नाउ व्हाट विल हैपन, समझो मैं ईवी पे महीने में समझो एक 300-400 यूनिट्स ले रहा हूँ. ओके, सो नाउ माई स्लैब चेंजेस. नाउ माई स्लैब विल गो अबव 500 रुपीज, सॉरी 500 यूनिट्स. तो उसमें क्या हो गया, तो 500 यूनिट्स का जो स्लैब है 10 रुपए 11 रुपए, वो स्लैब मेरे ऊपर आ गया. तो माई इलेक्ट्रिसिटी बिल इज बाउंड टू शूट अप. वो तो बहुत ज़्यादा होने वाला है. एंड इवन माई डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी चार्ज एट द हायर स्लैब रेट. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. तो इसलिए आई रिकमेंड इवन द इंडिविजुअल ओनर्स हु आर नाउ यूजिंग डोमेस्टिक कनेक्शंस टू get in touch with your society and ask them to install a proper charging system at your place. तो उससे क्या होगा, अगेन आई विल लेट यू नो. तो समझो आपकी सोसाइटी को, लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र. तो आपको सोसाइटी के लिए 6 रुपए पर यूनिट से आपका बिलिंग हो रहा है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द सोसाइटी विल चार्ज मी एज ए इंडिविजुअल ओनर एट 8 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, तो जो भी मेरा गाड़ी का कंजम्पशन है इट विल बी चार्ज एट 8 रुपीज पर यूनिट. अभी जो 2 रुपए का जो प्रॉफिट सोसाइटी को हो रहा है, दे कैन कीप दैट प्रॉफिट फॉर द मेंटेनेंस एंड अदर थिंग्स विच मेक राइज ऑफ दिस. जो भी मेंटेनेंस पार्ट रहेगा या फिर और कोई खर्चा आएगा, सो इट विल बी मेंटेन फ्रॉम दैट अकाउंट ओनली. यू डोंट हैव टू give money from your society in maintenance and other things which arises of this charging system. तो वो एक हो जाएगा. समझो आपने 5 चार्जेस का एक सिस्टम हमसे लिया है. सो एंड देयर आर ओनली 3 कार्स इन योर सोसाइटी. तो जो भी 2 चार्जेस आपके पास एक्स्ट्रा है, यू कैन पुट देम चार्जेस एट द एक्सटीरियर ऑफ जो भी आपका रोड का ये है या फिर वॉचमैन का केबिन है, उसके पास में आप ये लगा लो एंड हैव दिस चार्जेस एज चार्जर ऑन ए ओपन मार्केट. यानी जो भी बाहर का गाड़ी है वो भी सोसाइटी में आके वो चार्ज कर सकता है. एंड फॉर दोज 2 चार्जर यू कैन चार्ज द व्हीकल ओनर्स एट द मार्केट रेट. अभी मार्केट रेट एसी चार्जिंग के लिए इट इज अराउंड 15 to 18 रुपीज. तो यू कैन चार्ज द कार ओवर देयर ऑन एट 18 रुपीज पर यूनिट. और उसका भी सिमिलर ही रहेगा. जो भी ओनर आ रहा है, यू हैव टू इंस्टॉल दैट ईओ चार्जिंग ऐप. ईओ चार्जिंग ऐप से वो ये स्कैन करेगा और स्कैन करके सेम फैसिलिटी. द ओनली डिफरेंस इज दैट यू कैन हैव डिफरेंशियल रेट्स फॉर योर रेगुलर society member and the regular market rate for the other customers who are charging their vehicles on your system. तो उससे भी आपकी सोसाइटी के लिए ये हो जाएगा. यानी it will be a source of income to your society because more and more number of electric vehicles are coming into the market. So you have to be future ready for all this in what you say invasion of electric vehicles. क्योंकि बहुत बड़ी नंबर में ये आने वाले हैं. ऑलमोस्ट एवरी मैन्युफैक्चरर इज कमिंग आउट विथ ईवी इन दिस ईयर 2021. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. ऐसा नहीं है कि ईवी ला रही है, नो यू कांट चार्ज योर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन आवर सोसाइटी. डोंट डू इट. डोंट टेक दिस रिग्रेसिव स्टेप्स. दीज आर रिग्रेसिव स्टेप्स क्योंकि आप ये यू कांट कंट्रोल ईवीज नाउ. दे विल बी कमिंग इन लार्ज नंबर. सो better be ready for it. Abhi the last part of my this video is how to plan EV charging facility in upcoming buildings. So I think that there was a news some 15-20 days back regarding Maharashtra that every cooperative society or a apartment building or a mall or a public building where it should have a parking facility along with 10% of parking space to be reserved kept for electric vehicles along with charging facility. तो ये तो कंपलसरी होने वाला है. So why not take that step at the beginning of the
I mean, at the design level of the building, I request I would like to get in touch with the architects and builders और जो भी बड़ी बड़ी construction company है, I would like to get in touch with these companies so that you can plan your charging facility at the beginning only. अभी समझो क्या होता है, ये जो भी इसका कॉस्ट है, टोटल आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा डेट गोज टू अराउंड 10 crores, 15 crores, 20 crores. तो उसके अगेंस्ट ये चार्जिंग फैसिलिटी का कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा. सो इफ यू while giving the estimate for the entire project, if you consider this charging facility with a hub and 5 chargers to begin with, so you give it the estimate should be included in your total estimate of the building. तो वो आसान हो जाएगा आपके कस्टमर के लिए. सो उससे क्या होगा, ठीक है, वो कस्टमर वहीं से आपको सपोर्ट करेगा कि यस वी विल हैव ए चार्जिंग फैसिलिटी इन आवर बिल्डिंग. तो उससे ये होगा, आपका जो ब्रोशर करेंगे, आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसमें भी आप ये डाल सकते हो कि वी हैव ए फ्यूचर प्रूफ चार्जिंग फैसिलिटी इन आवर बिल्डिंग. और जो भी ईवी कस्टमर ये बिल्डिंग में आ जाएगा, ही इज वेलकम, वी विल गिव यू द चार्जिंग फैसिलिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. कि जैसे मैंने बोला, आप उसको 8 rupees पर यूनिट से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और जो भी उसका ये है मिनिमम चार्जेस है, दैट यू कैन डिवाइड इट इनटू, ये आपके जो कस्टमर्स है उनमें आप डिवाइड कर सकते हो. तो इससे आपके बिल्डिंग भी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा. पीपल विल, आई मीन, यू विल हैव एडेड अट्रैक्शन टू हैव इट इंक्लूडेड इन योर ब्रोशर्स. और people will start looking at you in a different perspective कि yes, these builders or these architects are they have a vision कि आगे जाके आपकी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली है. they know it right from the beginning. तो आपका स्टेटस भी आपका ये हो जाएगा, यानी people will be more attracted to your ventures. So these are the points which we regularly discuss with housing societies and the builders. So I hope you like this video, and if you have any questions regarding these systems और ये कैसे करना है, you can get in touch with me. You can comment me in the comment section, and I will try to answer all your queries. And if any architect or builder is interested in doing business with us, yes, he is most welcome, and we can do good business with all these facilities. And I'm sure ये जो भी हम लोग इसमें बिजनेस करेंगे वो अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस हो जाएगा, and it will be beneficial for both of us, plus it will be beneficial to the end user also, because अगर वो यूजर आगे जाके बड़ी इलेक्ट्रिसिटी स्लैब में अगर वो जा रहा है, तो वो अपना जो सिस्टम वो बिल्डिंग में लगता है, तो उससे वो कम स्लैब वाली इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में रह सकता है. एंड अगेन ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ द कॉमन चार्जिंग फैसिलिटी. तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स इन माय वीडियो. एंड as usual, thanks for watching my video and supporting me in my YouTube channel. So thanks once again. Keep driving with your seat belts connected, and let's drive electric. Thank you.